we started our introduction, and then on the last Friday perhaps, yes. And today we are going to start our formal discussion related to the contents which we have to discuss within the semester. We have also discussed regarding this subject, like we discussed the introduction of the grammar, the need of the grammar, why the language is important, and why there is a need to learn this language, and the skills which are required for the spoken as well as for the writing skills of the language. And हाँ जी मनीबा, मैं हमने ये वाले टॉपिक लास्ट में आप लोगों को बता दिए थे। हाँ जी, मैं यही बता रही हूँ, ये हमने लास्ट टाइम कर लिया था, ठीक है। सो उसके अलावा मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि अगर कोई बात होती है बच्चे तो वो मैसेज में लिख दिया करो, मैं वहां से पढ़ के आपको रिप्लाई कर दिया करूंगी। अगर कोई बहुत जरूरी मतलब जनरल सी बात होती है आपने करनी है, कर देता। ये कौन था पीछे? बच्चे अपने आप को म्यूट करके रखें और ध्यान दें जो भी मैं पढ़ाऊंगी, जो भी आप लोगों को बताऊंगी। ये ना हो कि बाद में आप लोगों के अपने लिए प्रॉब्लम हो जाए, क्लास में ध्यान ना दो और पेपर में आप लोगों के प्रॉब्लम हो जाए। आप लोगों की क्लास परफॉर्मेंस, क्लास बिहेवियर, ये एक एक चीज मैटर करेगी आपके फाइनल एग्जाम्स में। आप क्लास में अटेंटिव नहीं है, आप क्लास में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, you are responsible। अच्छा जी, उसके अलावा so we are going to start with the contents, and within the contents parts of speech हैं जो कि हमने करने हैं, मैं बता चुकी हूँ प्रीवियस क्लास में। उसके अलावा टेंसेस हमने करने हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है, एंड वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक इंस्टेड ऑफ अगर हम ये सोचें चलो जी बच्चे यूनिवर्सिटी में आ गए हैं, स्कूल में बहुत कुछ पढ़ के आए होंगे, कॉलेज में बहुत कुछ पढ़ के आए होंगे, बट दैट वाज नॉट एनफ। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो बेसिक चीज़ों के अंदर मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। सो अगर आप लोगों की बेस ही नहीं बनी हुई तो आगे जाके आप लोग किस तरह से किसी कम्प्लेक्स चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हो। अच्छा जी, उसके अलावा हमने ये देखा, मैंने आप लोगों को कंटेंट से रिलेटेड बता दिया था। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पार्ट्स ऑफ स्पीच, एंड विद इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोग, हाँ, बैकग्राउंड नॉलेज जरूर हो सकता है आप लोगों के पास कि आप लोगों ने स्कूल कॉलेजेस में पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत दफ़ा पढ़े होंगे, एंड देयर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, एंड विद इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच देयर आर डिफरेंट type, there are different subcategories regarding these things. So what do you think, what are the parts of speech and why there is a need? बच्चे आप लोगों की पैराग्राफ असाइनमेंट भी देख लेते हैं। अच्छा जी, anyone, what are the parts of speech? Ma'am, if we make a sentence or if we speak a sentence, then there are many parts in that sentence. For example, verbs, objects, subject, etc., helping verb, that are called parts of speech. Anyone else? Taimur Khan? Taimur Khan? Yes ma'am. Yes ma'am. What are the parts of speech? What is meant by parts of speech basically? Sorry ma'am. You don't know? No. पार्ट्स ऑफ स्पीच कभी नहीं पढ़े जिंदगी में? स्ट्रेंज। अली हसनैन? अली हसनैन? Yes ma'am. What are the parts of speech? Ma'am. एक दिन से बोलो। हाँ जी अली हसनैन। Every sentence has different parts. Sorry ma'am. नहीं ठीक हो,
ठीक हो गए सबका ज़ाहिर? Every sentence has different parts. And these are called the parts of speech. Yes. Okay. Parts of speech means that within the sentence there are different parts. Sabka was right. For example, this is a book, and within this sentence, very simple sentence this is, there are different parts. This is a book. There's a noun, there is you can say subject, that is there are articles. So the sentence is comprised of different words, and those words play their different roles. और वो जो words होते हैं वो different roles play कर रहे होते हैं, और different roles play करने से मुराद ये है कि उनके different functions होते हैं, ठीक है? तो parts of speech are basically the parts within the sentence that are playing their significant functions, or you can say that are playing their significant roles. Whether it is a simple sentence or any other sentence, within a sentence there are different parts, और वो जो different parts होंगे, this is a book. Or if there is any other sentence, she is writing a letter, and within the sentence she is writing a letter, she is writing a letter. There is a noun, there is a verb, there is an article, and there is an object. So there are different parts within a sentence that finally, after compiling in a sequence, they convey a meaningful idea. एक sentence जो है वो उसके different parts combine होके एक arranged form में एक meaning convey करते हैं, एक sense convey कर रहे होते हैं, ठीक है? और वो जो different parts हैं words के, for example, Aksa is writing a letter. अक्सा जो है that is a noun. आप लोगों को noun की definition तो शायद आती ही होगी, ठीक है? So noun is playing the role here. Writing is a verb. So means to say एक sentence के अंदर different parts होते हैं जो कि अपना एक role play कर रहे होते हैं, अपना function play कर रहे होते हैं, ठीक है? And within these parts of speech there are different parts of speech. What are those parts of speech? Bilal Ahmed Ghuman, what are the parts of speech different? Bilal Ahmed Ghuman. Yes, ma'am. हाँ जी, parts of speech कौन कौन से हैं? हाँ जी बिलाल. Ma'am, बिलाल आपके वक्त. noun, pronoun, Okay, and verb, adverb, adjective, बिल्कुल. हाँ जी बच्चे और preposition, इसके अलावा conjunction. अच्छा, before moving, okay बिलाल, before moving forward, let me tell you a story, ठीक है? Parts of speech की वो डिटेल में पढ़ने से पहले बिलाल म्यूट योरसेल्फ. पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में करने से पहले एक स्टोरी पढ़ते हैं, स्टोरी सुनते हैं, ठीक है? एंड आई एम गोइंग टू नरेट दैट स्टोरी. Once there was a family. The surname of the family was Grammar. एक फैमिली होती है और फैमिली का जो सरनेम होता है, जिस तरह से कास्ट होती है ना हमारी, उसी तरह से the surname of the family, उसको सरनेम कहते हैं. The surname of the family was Grammar, ठीक है? Within that family, there was a couple, husband and wife,
The name of the husband was noun. The name of the husband was noun, and name of the wife was what? Pronoun. No. Name of the wife was Verb. name of the wife was verb. ठीक है, एक फैमिली है, फैमिली का नेम ग्रामर है, और जी ग्रामर फैमिली के अंदर हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ में हस्बैंड जो है वो नाउन है, और हस्बैंड का नेम नाउन है, और जो है वाइफ उसका नेम है verb. नो, सुन लो जो करके एक दफा. हाँ जी, उसका नाम है वर्ब. एक मिनट, लेट मी एडमिट हर. अच्छा जी, सो वो जो हस्बैंड और वाइफ है, मिस्टर नाउन और मिसेस वर्ब है, उनके 3 चिल्ड्रन हैं. ठीक है, द कपल हैज 3 चिल्ड्रन and the name of the children are within the family. Among those children, they have 1 son and 2 daughters. Mr. Noun and Mrs. Verb have 3 children, a son name is pronoun. ठीक है, जो उनका बेटा है उसका नाम है pronoun, and जो उनकी 2 daughters हैं उनका नेम है adverb and adjective. ठीक है. Now the son name is what? Son का क्या नेम है? Pronoun. 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 हो गया. अच्छा, the pronoun who is a son has to do all the work of his father in his absence. अब जो प्रोनाउन है उसका क्या रोल है फैमिली के अंदर? वो अपने फादर की एब्सेंस में, फादर कौन है? नाउन. ठीक है, अपने फादर की एब्सेंस में उसके तमाम रोल प्ले करता है. समझ आ रही है? उसके अलावा आ जाती है उनकी 2 डॉटर्स. द नेम ऑफ द डॉटर्स आर एडवर्ब एंड एडजेक्टिव. दीज 2 डॉटर्स लव ईच अदर. दीज 2 डॉटर्स अपने दोनों बहनों में बहुत प्यार है, बट देयर इज अ डिफरेंस इन देम. Adjective loves her father. Adjectives loves her father. Who is her father? Father is a noun. Adjective loves her father as well as brother. And who is a brother? Brother is pronoun. And keeps praising them. अब जो उसका father है noun और जो brother है pronoun, उन दोनों के साथ adjective बहुत attach है और उनकी तारीफें करती रहती है. Means to say adjective क्या होता है? Adjective praises, adjective describe the quality of a noun or a pronoun. ये हम definition पढ़ते हैं ना. So adjective loves her father and brother and keeps praising them. And another daughter, her name is adverb. Adverb loves her mother. Who is mother? Mother is Mrs. Verb. Adverb loves her mother more and she always modified her when there is a need. Adverb जो है वो अपनी मदर के साथ बहुत अटैच्ड है और वो हमेशा अपनी मदर की क्वालिटीज डिस्क्राइब करती रहती है. हम एडवर्ब की डेफिनेशन पढ़ते हैं ना. एडवर्ब जो है वो एडवर्ब की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर. शी इज वॉकिंग स्लोली. वॉकिंग इज अ वर्ब एंड स्लोली इज व्हाट? स्लोली उसको डिस्क्राइब कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है. ठीक है, कि वो किस वे में वॉक कर रहा है या कर रही है. So adverb loves her mother more and she always modifies her when there is a need. There are 2 servants within the family. ये तो हो गए मिस्टर एंड मिसेस वर्ब, उनके 3 चिल्ड्रन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब. अब इस फैमिली के अंदर 2 सर्वेंट्स भी हैं. ठीक है, उन सर्वेंट्स का नेम है प्रेपोजिशन एंड कंजंक्शन. बेचारे, तो ये जो प्रेपोजिशन और कंजंक्शन है, प्रेपोजिशन जो है वो चीफ सर्वेंट है फैमिली का. एक होता है ना, एक फैमिली है, उसके बहुत वो रिच फैमिली है और उस रिच फैमिली के अंदर डिफरेंट सर्वेंट्स भी हैं और उन 8 सर्वेंट्स का कोई हेड भी होता है. ठीक है, तो ये जो प्रेपोजिशन है ये सर्वेंट्स का हेड है. सर्वेंट्स का, फैमिली के जो सर्वेंट्स हैं उनका हेड है. ऑफिशियल सर्वेंट, सब जो सर्वेंट्स हैं उनका मास्टर आप कह लो.
ठीक है। और preposition क्या होता है? preposition होता है in, is, the, and, at. These are what? preposition जो के फैमिली को यूनाइट करके रखते हैं, एक मीनिंग, उनके सारे रोल, उनका सब काम करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज राइटिंग अ लेटर, इधर इज ये रोल प्ले कर रहे हैं फैमिली को यूनाइट करने में, ठीक है, फैमिली का काम कर रहे हैं, फैमिली का मीनिंग कन्वे करने के लिए अपना वर्क कर रहे हैं। अच्छा, वो जो एक और सर्वेंट में, उसका नेम है कंजंक्शन। कंजंक्शन भी फैमिली का सर्वेंट है और वो एंड इट लुक्स आफ्टर एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली। अब कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन होता है जो कि दो सेंटेंसेस को आपस में यूनाइट करता है, ठीक है। कंजंक्शन होता है जो दो सेंटेंसेस को आपस में यूनाइट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एंड शी इज राइटिंग अ लेटर एंड शी विल पोस्ट इट टुमारो। अब ये दो सेंटेंस मैंने बोले और बीच में एंड लगा दिया और ये कंजंक्शन, ये यूनाइट कर रहा है, ठीक है। तो ये दो सर्वेंट्स हो गए फैमिली में, प्रेपोजिशन एंड कंजंक्शन। इसके अलावा एक और भी सर्वेंट है फैमिली में, उसका नाम है इंटरजेक्शन और एक्सक्लेमेशन। एक मिनट, आज मेरा गला खराब है तो आपको ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। अच्छा जी, जो इंटरजेक्शन और एक्सक्लेमेशन होता है ये फीलिंग्स को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो इंटरजेक्शन जो है ये फैमिली के अंदर जितने भी कोई हैपनिंग होती है, कोई हैप्पी मोमेंट है, कोई सैड मोमेंट है, उसको डिस्क्राइब करता है, ठीक है। ये जो इंटरजेक्शन है सर्वेंट ये वाला रोल प्ले करता है। समझ आइए कुछ? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम रिपीट कर दे। मैं रिपीट कर देती हूँ, कोई मसला नहीं, ठीक है। सो ये एक कंजंक्शन, जो ये एक ग्रामर फैमिली की स्टोरी है और ग्रामर फैमिली के अंदर जितने भी ये पार्ट्स हैं, जो मेंबर्स हैं, वो अपना जो फंक्शन है, जो रोल प्ले कर रहे हैं, वो इस स्टोरी के अंदर डिस्क्राइब हुआ है। एक मिनट जरा रुक। दो मिनट के अंदर मैं स्टोरी को दोबारा रिपीट कर रही हूँ। स्टोरी सुनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं उनके फंक्शंस को अंडरस्टैंड करें, ठीक है। एक फैमिली है, फैमिली का सरनेम है ग्रामर। ग्रामर फैमिली के अंदर एक कपल है, मिस्टर नाउन एंड मिसेस वर्ब। उनके 3 बच्चे हैं, उनका नाम है, उनका जो बेटा है उसका नाम है प्रोनाउन। 2 डॉटर्स हैं, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। जो प्रोनाउन है वो फादर के साथ ज़्यादा अटैच है और वो हमेशा अपने फादर की एब्सेंस में उनका रोल प्ले करता है। जो एडजेक्टिव है वो अपने फादर के साथ, और जो एडजेक्टिव और एडवर्ब हैं ये दोनों सिस्टर्स हैं एंड दे बोथ लव ईच अदर। एडजेक्टिव जो है वो नाउन की क्वालिटी डिस्क्राइब करता है और जो एडवर्ब है वो वर्ब की क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो दोनों का मकसद, फंक्शन जो सेम हो गया, मीन्स टू से क्वालिटीज को डिस्क्राइब करते हैं। दैट्स व्हाई दीज टू सिस्टर्स लव ईच अदर, बट द डिफरेंस इज दैट एडजेक्टिव जो है वो अपने फादर और अपने जो ब्रदर है उसके साथ ज़्यादा अटैच है, नाउन एंड द प्रोनाउन, और उनकी क्वालिटीज को डिस्क्राइब करती है, कीप्स प्रेजिंग देम। व्हाइल एडवर्ब इज अनदर मेंबर ऑफ द फैमिली हु इज अ डॉटर and she is more attached to her mother name is Mrs. Verb and the mother's name is Mrs. Verb and she keeps modifies her mother, ठीक है। उसके अलावा फैमिली के अंदर तीन सर्वेंट्स हैं। The name of the servants are preposition, conjunction and interjection. Preposition is the chief servant of the family that basically unites the फैमिली को यूनाइट करता है। उसके अलावा यूनाइट करने से मुराद ये है कि फैमिली का एक सेंस कन्वे करता है, ठीक है। चीफ उसका रोल जो है वो प्ले करता है। उसके अलावा जो कंजंक्शन है ये फैमिली के मेंबर्स को यूनाइट करके रखता है। एंड द थर्ड सर्वेंट इज इंटरजेक्शन दैट जॉइंस द फैमिली। इंटरजेक्शन
फैमिली को ज्वाइन कर लेता है in every time of joy and the sorrow. That is the story of the ग्रामर फैमिली. समझ आई है? कुछ पल्ले पड़ा दिमाग में? जी मैम आ गई. Yes ma'am. Yes, Okay. ma'am. Yes, ma'am. Okay. ठीक हो गया. So within this family we are going to start with the noun, and you know very well the name, the basic definition of the noun. Perhaps let me ask from Ikra Ramzan. Ikra Yes, Ramzan. ma'am. What is noun? Yes, ma'am. What is noun? The name of a person, place, or thing is called noun. The name of a person, place, thing, and is called a noun. Anything else that comes within the definition of noun? Huh? No, ma'am. No? Okay. Let me ask from another. Inamullah. Inamullah. जी बच्चे. Inamullah, can you hear me? Inamullah, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे. और अगर कोई ऐसा बच्चा मुझे क्लास में मिला जिसकी अटेंडेंस के टाइम स्पीकर बिल्कुल ऑन है, सिग्नल सारे ठीक आ रहे हैं, लेकिन कोई बात पूछी है तो उसके सिग्नल खराब हो गए हैं, तो मैं उसको रिमूव कर दूंगी और उसकी अटेंडेंस भी नहीं लगेगी. इट्स सिंपल. नूरुल एंड खुर्शीद. Yes, ma'am. हाँ जी. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ नाउन? Anything, person, place. दोबारा बोलो बच्चे. Anything, person, place. बस. Have you played that One game? person, place. Okay, हो गया. Okay, हो गया. I am asking a question to everyone. Have you played that game ever? नाम, चीज, जगह. खेलिए कभी? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस मैम And that खेलिए. was very- Yes, ma'am. and that game was very interesting. और इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ वो नॉलेजेबल भी बहुत थी. काफ़ी हमारा जो बैकग्राउंड, हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, हम उसको अल्फ़ाबेटिकली लिखते रहते हैं. ठीक है. सो इसी तरह से अब लास्ट टाइम जब व्हेन आई वाज टेकिंग द क्लास ऑफ योर सीनियर्स, अब तो वो सीनियर हो गए आप लोगों के, उनको जब मैंने नाउन पढ़ा रही थी तो विद इन द क्लास आई प्लेड विद देम दिस गेम, नेम, प्लेस, थिंग, and we enjoyed a lot very much, but this time due to pandemic we are taking the online classes, but it's quite difficult for now. But okay, moving towards the topic. Noun is basically a name of a person, place, thing, as well as idea. Noun does not just confine itself towards a name of a person, place and thing. ठीक है. Noun जो है, noun is a name of a person, place, thing, as well as any idea. Idea means to say any quality or the attribute. For example, he is a brave boy. Here, brave is also a noun. She is a crazy girl. Crazy is what? Crazy is an idea. ठीक है. मैम आवाज नहीं आ रही. मैंने अपने आप को म्यूट किया हुआ, आवाज कहाँ से आएगी आप लोगों को? अच्छा. So noun is a name of a person, place, thing as well as an idea. अब ideas के अंदर जैसे मैंने बताया, brave, crazy होना, beautiful, ugly, hate, love, kind, rigid, flexible, these all are the ideas. ठीक है. तो noun की definition में idea always comes under this definition. Noun is a name of a person, place, thing and an idea. ठीक है. So we know the definition of the noun.
what is a noun within the sentence. If there is any noun that you can identify that this, for example, if there is a sentence, she is a no, if I say if he lives in Islamabad, so you will easily identify what is noun here. Noun is a name, so you will identify that Islamabad is the name here, so it's a noun. But there are different types of the noun, and there are different functions of the noun. So within the noun we are going to study different types. We are going to differentiate between those types, as well as we are also going to study the function of the noun within the sentence, what a noun is playing its role. We are studying the parts of speech within the sentence, whether someone is speaking that sentence or writing that sentence. It's not a big issue, but within a sentence the noun, जो रोल एक सेंटेंस के अंदर नाउन है उसका क्या फंक्शन है, और साथ साथ तो वो किस टाइप को रेफर कर रहा है. इफ यू विल आइडेंटिफाई इजीली द टाइप ऑफ अ नाउन, देन it will not be difficult for you to describe the function of that noun. ठीक है. अच्छा जी, so within the types of the noun there are different types of noun. Open your registers and write down whatever I am telling you regarding these types. नोट डाउन कर लो अपने रजिस्टर्स के ऊपर, ताकि ये ना हो कि कल को आप लोग क्लास के अंदर आके को मैडम समझ नहीं थी आई, कुछ नोट नहीं किया, बिकॉज आई एम गोइंग टू आस्क द क्वेश्चंस द नेक्स्ट डे ऑन द नेक्स्ट डे. अच्छा जी, और एक और बात, ये मत समझना कि यूनिवर्सिटी के अंदर आ गए हैं तो हम आज़ाद हो गए हैं, हमारे अंदर स्कूल वाली रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो गई हैं, कॉलेज वाली रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो गई हैं. यू आर स्टिल द स्टूडेंट्स. हाँ, ये है कि आप लोगों का वो फॉर्मल वे नहीं है जिस तरह से आप स्कूल आते हैं, टाइम फॉलो करते हैं, और उसके अलावा आप लोगों का यूनिफॉर्म एक प्रॉपर होता है, वो चीज़ नहीं है. बट यू पीपल आर स्टिल द स्टूडेंट्स. ये नहीं होगा कि यूनिवर्सिटी के अंदर क्लास हो रही है तो टीचर ने लेक्चर दे के क्लास ख़त्म कर दी, अगले दिन फिर अगला लेक्चर, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा. ऐसा कोई सीन नहीं है. जो एक दिन मैं पढ़ाऊंगी वो अगले दिन मैं सुनूंगी भी, टेस्ट भी ले सकती हूँ किसी भी दिन बगैर बताए. ठीक है, तो अपने आप को प्रिपेयर रखें. क्लास हो रही होती है आप लोगों की, फिजिकल क्लास हो रही होती तो वो चीज़ अलग थी, लेकिन अगर वो नहीं हो रही और बच्चा नहीं पढ़ के आता, सो यू पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेशनल मार्क्स. ठीक है, सेशनल मार्क्स वो होते हैं जो अगर टीचर आपको 0 भी दे दे, बेशक आपने जितना मर्जी अच्छा परफॉर्म किया हुआ हो अपने मिड के पेपर में, अपने फाइनल पेपर में, अगर आपके टीचर ने आपको किसी रीज़न की बेस पे 0 सेशनल दे दिए हैं, सो यू विल बी फेल. ठीक है, तो फेल तो नहीं होना ना सेशनल की बेस पे. सेशनल आपके डिपेंड करते हैं आपकी क्लास परफॉर्मेंस, आपका क्लास बिहेवियर, आपका क्लास एटीट्यूड, आप कितने डिसिप्लिन में रहते हैं, और उसके साथ साथ आप कितनी पार्टिसिपेशन, आप कितना पार्टिसिपेट कर रहे हो क्लास के अंदर, कितना पढ़ के आ रहे हो, कितना नहीं पढ़ के आ रहे हो. और अब ये सीन है कि क्योंकि जो बच्चा नहीं पढ़ के आएगा मैं उसको पनिशमेंट तो नहीं दे सकती हूँ यहाँ पे, लेकिन पनिशमेंट ये ज़रूर हो सकती है कि एट द एंड उसको कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ जाए मार्क्स की बेस में. क्योंकि सेशनल वो है जो कि टोटली मेरे हाथ में, टीचर के हाथ में कभी नहीं होते, वो बच्चे के अपने हाथ में होते हैं. बच्चे का अपना बिहेवियर जैसा होगा वैसे उसके मार्क्स आएंगे. हाँ जी रोमान. मैम आपने बुक नहीं सेंड किया, इंग्लिश की बुक नहीं सेंड किया आपने व्हाट्सएप नंबर. मैं आपको इंग्लिश की बुक से पढ़ाना शुरू किया. मैंने आपको क्या बुक से पढ़ाना शुरू किया जो मैं सेंड करूँ? जब मैं पढ़ाना शुरू करूँगी मैं सेंड कर दूँगी. ठीक है. अच्छा, एक और बात ये है कि ठीक हो गया. बात ये है कि मैंने ग्रुप उस बुक के अंदर से, बुक वो है जो आप लोगों ने रीड आउट करनी है, उसके साथ साथ उसके अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ है जो कि हम करेंगे. लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो कि बेसिक मैं आप लोगों को करा रही हूँ, ये आप लोग ऑन उसके ये नोट्स भी मैं आप लोगों को सेंड करती रहूँगी, बुक से भी आप लोग पढ़ोगे. ठीक है. अब यूनिवर्सिटी के बच्चे हो, सिर्फ एक बुक तक नहीं हमने डिपेंड करना एक बुक के ऊपर कि इस बुक के अंदर से हमने सारा कुछ ये हमने A to Z हमने ख़त्म करनी है. ठीक है. वी हैव टू स्टडी डिफरेंट टॉपिक्स फ्रॉम डिफरेंट you can say links from different sources. अच्छा जी, so you have easily understood the definition of a noun, name of a person, place, thing, as well as an idea. But there are different types. The very first type of noun is common noun. Common noun, COMMON. Common means to say general.
ठीक है. When you take the things in a general sense, then आप उसको common noun कहते हैं. For example, if there is a sentence, there are many cities in Pakistan. ठीक है. There are many cities in Pakistan. Here, general हमने कौन that is a common noun when we take the things in general. For example, there are many cities in Pakistan. Here, cities is referring to different cities. ठीक है. For example, let me admit them. एक मिनट रुको. हाँ जी. So here cities हमने जनरली ली है. ठीक है. हम किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज को हम नहीं कह रहे. There are different cities in Pakistan. ठीक है. कॉमन नाउन होता है जब हम किसी स्पेसिफिक चीज का नेम नहीं ले रहे होते. जब हम स्पेसिफिक किसी चीज का नेम नहीं ले रहे होते. मोहम्मद कामरान, म्यूट योरसेल्फ. स्पेसिफिक हम जब किसी चीज का नेम नहीं ले रहे हैं, बट वी आर टेकिंग द थिंग्स इन जनरल सेंस. फॉर एग्जांपल, दिस इज अ सिटी ऑफ पाकिस्तान. ठीक है. तो सिटी इज व्हाट? सिटी इज नॉट द प्रॉपर नेम ऑफ एनीथिंग. ठीक है. सिटी इज व्हाट? सिटी इज वी आर टेकिंग सिटी इन अ जनरल सेंस. ठीक है. These are the students of the class. Students, I am not talking about any particular student of the class or any few students of the class, but I am taking all the students in a general sense. Then I will say that this is a common noun. Common noun के अंदर हम चीज़ों को generally लेते हैं. ठीक है. General चीज़ों को, for example, city, now, city, country, woman. These are the general things. For example, हम जब definition देखते हैं noun की, noun is a name of a person, place, thing and idea. अब ये हमने generally definition को भी हमने general रखा हुआ है. ठीक है. हम कोई specific नहीं हो रहे. हम ये नहीं कह रहे noun is a name of Maria, Islamabad, any cupboard or any crazy thing. But definition के अंदर भी definition हमेशा general ली जाती है. In the same way, कॉमन नाउन होता है, दैट इज वेरी इजी. कॉमन नाउन के अंदर एनीथिंग दैट इज डिस्क्राइब्ड इन अ जनरल सेंस, दैट इज अ कॉमन नाउन. ठीक है. बट दिस द सेकंड टाइप ऑफ अ नाउन इज अ प्रॉपर नाउन. ठीक है. प्रॉपर नाउन इज समथिंग जब हम किसी चीज का स्पेसिफिकली उसको डिस्क्राइब करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, नोमान इज द स्टूडेंट ऑफ BS first. Here I am talking about the specific things. I am talking about that specific student, Noman. ठीक है. And I am also talking about the class as well. BS first, that is specific class. I am talking about the name of the class. ठीक है. जब हम चीज़ों को specific लेकर चलते हैं, ठीक है, हम उसके अंदर प्रॉपरली किसी का नेम लेते हैं, किसी क्लास का नेम लेते हैं, किसी प्लेस का नेम लेते हैं, किसी थिंग का नेम लेते हैं, किसी आइडिया का नेम लेते हैं, देन वी टॉक अबाउट द प्रॉपर नाउन. ठीक है. कॉमन नाउन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, द सेंटेंस वाज देयर आर मेनी सिटीज इन पाकिस्तान. सिटीज इज वी हैव टेकन सिटीज इन अ जनरल सेंस. ठीक है. इन पाकिस्तान, पाकिस्तान इज द नेम ऑफ अ कंट्री. हमको ये नहीं कह रहे देयर आर मेनी सिटीज इन दिस कंट्री. ठीक है. इन दिस कंट्री जब हो जाएगा तो भी हम जनरल ले रहे हैं चीज़ों को. सिटीज भी जनरल हो गया, कंट्री भी जनरल हो गया. तब हम इनके जो फर्स्ट लेटर्स हैं इन दोनों नाउन्स के, सिटी एंड द कंट्री, वो हम स्मॉल रखेंगे. कॉमन नाउन के अंदर आपका जो फर्स्ट अल्फाबेट होता है नाउन का, वो स्मॉल रखा जाता है. बट इन द प्रॉपर नाउन, आप क्योंकि वो प्रॉपर आप एक चीज़ का नेम ले रहे हैं, स्पेसिफिक चीज़ का नेम ले रहे हैं, दैट्स वाई आप उसका जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल रखते हैं. देयर आर मेनी सिटीज इन पाकिस्तान. पाकिस्तान का जो फर्स्ट लेटर है वो आप कैपिटल रखेंगे. बट द नेम ऑफ द कॉमन नाउन इज अ स्पेसिफिक नाउन. कॉमन नाउन इज द जनरल नाउन. हम जनरली चीजों को लेते हैं. दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू राइट डाउन द फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ दैट नाउन इन द स्मॉल अल्फाबेट. ठीक है. कॉमन नाउन
is a noun in which we take the things in a general sense, and second type of a noun is a proper noun in which we take the things in a specific sense. ठीक है, स्पेसिफिकली किसी चीज का नेम लेते हैं प्रॉपर वे में. ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉमन एंड द प्रॉपर नाउन. ठीक है, अच्छा, इसके अलावा थर्ड टाइप है नाउन की, दैट इज कंक्रीट नाउन. CONCRETE, कंक्रीट नाउन. कंक्रीट नाउन इज समथिंग. व्हाट डू यू थिंक फ्रॉम दिस वर्ड कंक्रीट? एनीवन? अमीर हमजा? Any material. बेटा जिससे पूछूं वो बताए. अमीर हमजा? जी मैम, नो आइडिया. You have no idea? बच्चे स्कूल में क्या पढ़ते रहे हो? कॉलेज में क्या पढ़ते रहे हो? जी जी मैम. कॉलेज में क्या पढ़ते रहे हो? निकाल में पढ़ा, अभी नो आइडिया, कोई नहीं, माइंड में नहीं. अच्छा, अभी कोई आइडिया नहीं आ रहा जी. ये हुआ ना कि एक मिनट, वो जो मुहावरा है हम सारी कश्तियां जला कर आए हैं. मजाल है जो जरा सा पिछला बैकग्राउंड नॉलेज हमने अपने दिमाग में रखा हो, क्योंकि तौबा हो जाती है ना जिस दिन हमने पेपर देना होता है, उस दिन तो हमने शुक्र करना होता है कि बस दिमाग से हमने सारा कुछ निकाल देना है, हमने सारी किताबों को साइड पे रख देना है. तौबा जो आइंदा हमने इनमें से कुछ पढ़ा तो कभी हमने कुछ अपने दिमाग में बिठाया है ना, ऐसा ही होता है. मोहम्मद शुएब? मैम किस मटेरियल की मतलब का चीज जो होती है? कंक्रीट किसी मटेरियल से आप ले रहे हो. ठीक हो गया, गुड है. अकीला जमीन? अकीला बोलो, समझ नहीं आई आपकी मुझे. अकीला आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे. मुजम्मिल खान? यस मैम. हाँ जी मुजम्मिल. हाँ जी, हाँ जी मुजम्मिल. कंक्रीट ऐसी चीजें जिसका हम तस्वर कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते. हाँ, ऐसी चीजें हैं जिसका हम तो. मुजम्मिल, उर्दू में कितने मार्क्स आए थे? मुजम्मिल बच्चे, आपको आवाज आ रही है मेरी? उर्दू में एफएससी में जी. जी बच्चे, एफएससी में कितने मार्क्स आए थे? यस. उर्दू में कितने? उर्दू में 145 आउट ऑफ 200. यस मैम. इसीलिए गुड है. ठीक है, आप डेफिनेशन बिल्कुल ठीक बताइए, आपके जो मीनिंग आपने बताया. कंक्रीट नाउन इज समथिंग. अब वो बच्चे जिनको एफएससी का कुछ याद नहीं है, जो मजाल है तो कुछ याद रखा हो, वो सुन लें, दिमाग में बिठा लें. ये ना हो कि अगले दिन जब मैं पूछ रही हूँ तो फिर क्या मैडम वो तो कल आपने बताया था, आज तो नहीं याद, क्योंकि कल तो गुजर जाती है ना. तौबा हमारी जो हमने कल के ऊपर जरा सी ध्यान दिया हो, बस मुहावरे को हमने सीरियस ले लिया हुआ. जैसे छूना तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होता, वो एब्स्ट्रैक्ट होता है, उन्होंने बताया. अच्छा, 1 मिनट रुक जाओ. ठीक है, कंक्रीट नाउन इज समथिंग. कंक्रीट नाउन इज समथिंग. कीप विद इन योर माइंड एवरीवन. कंक्रीट नाउन इज समथिंग व्हिच यू कैन परसीव फ्रॉम योर 5 सेंसेस. ठीक है, ऐसी चीज कंक्रीट नाउन व्हिच यू कैन परसीव फ्रॉम योर 5 सेंसेस. 5 सेंसेस से मुराद ये है कि आप अपनी 5 सेंसेस के थ्रू उन चीज़ों को परसीव कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सी, यू कैन टच, यू कैन स्मेल, यू कैन टेस्ट एंड यू कैन हियर. दीज आर द 5 सेंसेस ना, जो कि आपको नेचुरली अल्लाह की तरफ से मिली होती हैं. ठीक है, आप उनसे परसीव कर सकते हैं.
लेकिन एक सिक्स सेंस भी होती है, कॉमन सेंस होती है, जो कि कभी कभी बच्चे इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो कुछ के पास होती है कुछ के पास नहीं होती, होती वैसे सबके पास है, इस्तेमाल कोई भी करता है। तो कंक्रीट नाउन इज समथिंग विच यू कैन परसीव फ्रॉम योर 5 सेंसेस। अब कंक्रीट नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो कि फिजिकल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। आप उसको 5 सेंसेस से भी परसीव कर सकते हैं। यू कैन सी, you can smell, you can taste, you can hear and you can smell, ठीक है। ये आप 5 सेंसेस यूज करके उस नाउन को परसीव कर सकते हैं और ये फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल साउंड इज अ कंक्रीट नाउन बिकॉज यू कैन हियर दैट, ठीक है। इफ देयर इज एनी बिल्डिंग को आप टच भी कहीं कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो सी द बिल्डिंग, दैट्स व्हाई इट्स अ कंक्रीट नाउन। एनी एनिमल, anything that exists, for example table, chair, window, door, these all things are what? These comes under the category of a concrete noun. Concrete noun is something which a person can perceive from its 5 physical senses and that exists in the physical form. इसको हम कहते हैं concrete noun, ठीक है। Now comes towards another type of a noun, that is an abstract noun। और abstract noun वो होता है जो कि concrete noun से थोड़ा contradict करता है, ठीक है। तो it's different from that concrete noun। जिस तरह से common और proper noun के अंदर difference है, in the same way concrete noun और abstract noun के अंदर भी difference है। abstract noun is something, abstract के आप name से ही understand कर सकते, something very that is abstract, ठीक है। So abstract means to say abstract noun is a noun that you cannot perceive from your 5 physical senses, ठीक है। आप अपनी senses से perceive नहीं कर सकते हैं। concrete में क्या था? you can perceive from the 5 senses, but abstract noun is something that you cannot perceive। for example मैंने आप लोगों को definition के अंदर बताया है, noun is a name of a person, place, thing and an idea। अब idea क्या होता है, ठीक है। आइडिया मीन्स टू से या क्वालिटी या किसी की एट्रीब्यूट को डिस्क्राइब करना। सो इफ आई से ही इज अ ब्रेव बॉय, अब ब्रेव क्या है? ब्रेव उसकी क्वालिटी है जो कि उसके अंदर एग्जिस्ट करती है, बट ब्रेव ऐसी चीज है, क्या वो फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? क्या कोई ऐसी एक चीज एग्जिस्ट करती है जिसको आप ब्रेव कह दें और उसको आप टच कर सकते हो, आप स्मेल कर सकते हो, आप देख सकते हो, फील कर सकते हो, but that is a quality, ठीक है। in the same way if I say that he understands me, अब ये understanding क्या है? understanding क्या किसी physical form के अंदर exist करती है? no, but understanding is something that is mutual between two people, ठीक है। और ये अंडरस्टैंडिंग इज समथिंग दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू पीपल, ठीक है। और वो कोई फिजिकल फॉर्म नहीं, उसकी कोई पड़ी हुई आपके रूम के अंदर या आपके किसी भी एरिया के अंदर जहाँ बैठे हुए जिसको आप टच कर सकते हो, आप स्मेल कर सकते हो, आप देख सकते हो, ठीक है। आप 5 सेंसेस से परसीव कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शी इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। अब फ्रेंडशिप क्या है? फ्रेंडशिप इज बिटवीन टू पीपल, ठीक है। अब फ्रेंडशिप के अंदर उनकी अंडरस्टैंडिंग है, वो एंजॉय करती हैं आपस में, ठीक है, आपस में अंडरस्टैंड करती हैं। तो फ्रेंडशिप भी एक आइडिया है, ठीक है। फ्रेंडशिप कोई ऐसी नहीं है कि फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करती हो और आप उसको हाथ लगा सकते हो, देख सकते हो, बट ये एक एट्रीब्यूट आ जाता है, ठीक है। या हम कह देते हैं क्यूट, टाइम इज व्हाट हम कहते हैं ना, ये दिस इज एक मिनट दिस इज फॉर एग्जाम्पल इफ आई से गुड मॉर्निंग, ठीक है, दिस इज द टाइम ऑफ मॉर्निंग। अब मॉर्निंग जो है अब एक टाइम है, ठीक है। हम फॉर एग्जाम्पल इफ समवन से कि इट्स 3 o'clock, अब 3 o'clock एक अंडरस्टूड सी चीज है, एक टाइम है विद इन द डे जो कि एक फिजिकल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, दैट यू कैन नॉट टच दैट, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज समथिंग दैट यू कैन नॉट परसीव फ्रॉम योर 5 सेंसेस and it does not exist in the physical form,
contradictory to the concrete noun. Concrete noun was something that you can perceive. आप इन concrete और abstract के word से ही understand कर सकते हैं. अब concrete something जो कि मटेरियल, एक कंक्रीट एक मटेरियल भी होता है ना, जो कि बिल्डिंग बनाने में यूज हो रहा होता है. कंक्रीट वर्ड आपने सुना होगा, तो जो कि एग्जिस्ट करता है. एंड एब्स्ट्रैक्ट इज समथिंग दैट इज समथिंग ब्लर. ठीक है, कहते हैं ना एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है. एक आर्ट होता है जिसके अंदर उन्होंने डिफरेंट कलर्स, तरह के कलर्स होते हैं और अजीबोगरीब सी पेंटिंग बनाई होती है और लोग कह रहे होते हैं ये क्या बना दिया, बट उसके अंदर एक मीनिंग होता है. ठीक है, जो कि फाइंड आउट करना, तो जो कि अंडरस्टैंड करना होता है एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के अंदर. सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो कि फिजिकल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता. समझ आइए? यस मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके. मैम साउंड इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ये किसने बोला? दोबारा बच्चे को क्वेश्चन करो. मैम साउंड इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, साउंड, वॉल्यूम. अच्छा नुमान, मुझे बताओ कि तुम्हारी 5 सेंसेस कौन कौन सी हैं? मैडम सी स्मेल, टेस्ट, टच और स्मेल, हियर. हाँ ठीक हो गया. अब बताओ कॉमन सेंस. अब ये जो छठी सेंस है कॉमन सेंस, इसको जरा यूज करो और मुझे बताओ कि साउंड क्या है. 5 सेंसेस में कोई 5 सेंसेस के अंदर क्या 5 सेंसेस जो है तुम्हारी, उनके क्या तुम अब कॉमन सेंस यूज करके बताओ कि ये जो तुम्हारी 5 सेंसेस है, क्या साउंड जो है वो किसी एक सेंस में यूज होती है? यस मैम. कौन सी होती है? हियर. हियर. You can hear ना, you can hear any sound. यस So ये मैम. क्या हुआ? ये एब्स्ट्रैक्ट हुई क्या? कंक्रीट. Yes, this is a Concrete noun. So this is a concrete noun. You have to use your common sense, your own common sense in order to make the things understandable. ठीक है? So very good if you have asked the question. अपनी जो confusion है आपने दूर की है. So concrete is something that you can perceive from your senses, and abstract is something that you cannot. And while using your sixth sense, common sense, you have to make the things, you have to differentiate between different things. समझ आइए? अच्छा जी, उसके अलावा जो आपकी ठीक हो गया, आपकी फिफ्थ सेंस कह रही हूँ, आपकी फिफ्थ टाइप है नाउन की, दैट इज कलेक्टिव नाउन. ठीक है, कलेक्टिव नाउन. अब कलेक्टिव नाउन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नाउन्स व्हिच वी हैव स्टडीड. कलेक्टिव नाउन इज that exist in the form of groups of any people or anything. ठीक है, और उनको collectively हम एक name दे देते हैं. collective noun होता है कि different लोग combine हो, या different चीजें combine हो, या different animals combine हो, तो और हम उनको एक name दे देते हैं. ठीक है, for example, अब आप सब एक क्लास के स्टूडेंट्स हो. ठीक है, आप सब एक क्लास के स्टूडेंट हो, हम आपकी क्लास को एक नेम दे देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द क्लास ऑफ BS फर्स्ट. इंस्टेड ऑफ नेमिंग ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ द क्लास, हम उनको एक क्लास का नेम दे देते हैं. या अगर हम कोई और एग्जाम्पल इसकी लें, फॉर एग्जाम्पल एक क्राउड है. अब क्राउड क्या होता है? हजूम होता है ना, जिसके अंदर लोग कंबाइन, डिफरेंट लोग इकट्ठे होते हैं. क्राउड इज व्हाट? क्राउड इज अ कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव के अंदर आप ढेर, मतलब जो ढेर से मुराद है कि ग्रुप की फॉर्म को एक नेम दे देते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑडियंस. ऑडियंसेस तो नहीं होता ना. ऑडियंस जब आप ये डिफरेंट लोग होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा लोग होते हैं, तो आप उनको ऑडियंस कह देते हैं, एक नेम दे देते हैं. एंड विद इन द फैमिली इटसेल्फ इज अ कलेक्टिव नाउन. समझ आइए? जी मैम. तो कलेक्टिव नाउन दैट कैन बी काउंटेबल. ठीक है, अब एक फॉर एग्जांपल देयर वाज अनदर वर्ड, गवर्नमेंट.
अब गवर्नमेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर भी है, डिफरेंट मिनिस्टर्स भी हैं, डिफरेंट क्या कहते हैं मशीर भी होते हैं, डिफरेंट लोग होते हैं, ठीक है। तो अब डिफरेंट वर्कर्स भी होते हैं, उनको हम कंबाइन क्या देते हैं, दिस इज अ गवर्नमेंट, ठीक है। कलेक्टिव चीजों को कलेक्टिव कर देते हैं, ठीक है। डिफरेंट लोगों को कलेक्टिव चीजों को एक नेम दे देते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ थिंग्स। फॉर एग्जांपल एनी अदर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर हम एनिमल्स की बात करें, ठीक है, जो एक कलेक्टिव बर्ड्स फ्लाई कर रही होती है ना आसमान के अंदर, उनको हम कहते हैं फ्लॉक। these are the flock. The flock is flying in the air. फ्लॉक जो डिफरेंट ये जो बर्ड्स इकट्ठी उड़ी होती हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं फ्लॉक। तो हम कंबाइन चीजों को या डिफरेंट चीजों को एक नेम देके उसको सिंगुलर बना देते हैं और इसके साथ हम इज यूज करते हैं। जब हमने सिंगल बना दिया, ऑडियंस आर नहीं होता, ऑडियंस इज होता है। द फैमिली इज। अब ऑडियंस के अंदर ढेर लोग हैं, ठीक है, फैमिली के अंदर भी कुछ डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, फैमिली के गवर्नमेंट के अंदर भी डिफरेंट लोग होते हैं। अब फ्लॉक जो है, बर्ड्स जो फ्लाई कर रही होती हैं, उसमें भी डिफरेंट बर्ड्स फ्लाई कर रही होती हैं, लेकिन हम उसको एक नेम हमने दे दिया फ्लॉक का। तो अब फ्लॉक्स नहीं होता, ऑडियंसेस नहीं होता, ठीक है, गवर्नमेंट्स नहीं होता, ठीक है। तो इनके साथ जब ऑडियंस लगा, फैमिली लगा, गवर्नमेंट लगा, तो इनके साथ हम इज यूज करते हैं। सो दिस इज व्हाट, this is the collective noun. For example, if I say the committee is having a meeting. अब committee क्या है, अब committee के अंदर दो या दो से ज्यादा, 2 or more people are there within the committee, और उसके अंदर हम उसको उन कंबाइन लोगों को हम एक नेम दे देते हैं जो कि है army is also a collective noun, very good. Police is also a collective noun, that's very good. People is a collective noun. Peoples तो नहीं होता ना, very good. So these are what, these are the collective nouns. अच्छा जी, ये हो गई हमारी एक टाइप। उसके बाद आ जाते हैं हमारी the sixth type is countable noun. अब countable noun, आपको जो collective noun है जो कि मैंने आप लोगों को बताया, that is also countable, ठीक है। आप काउंट तो कर सकते हैं ना लोग इसके अंदर जितने भी होते हैं। एक मिनट जरा रुको, I have to mute myself. एक मिनट। यस, फर्नीचर इज अ कलेक्टिव नाउन। फर्नीचर के बाद आ जाता है, या फर्नीचर फॉर एग्जांपल बेड, चेयर, टेबल, कबर्ड, दीज, ये फर्नीचर के अंदर चीजें आती हैं। वेरी गुड मारिया, ये भी उसके अंदर आ जाता है। अब आते हैं अच्छा एक और, हेयर, मारिया मुनीबा इज आस्किंग अ क्वेश्चन, हेयर इज अ कलेक्टिव नाउन। हेयर इज अ कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जांपल अब होता है क्वेश्चन, बच्चे पूछते हैं हेयर होता है या हेयर्स होता है। इट्स हेयर। हेयर्स भी हेयर के सेंस में होता है, हेयर के सेंस में होता है, ये भी बताती हूँ। हेयर क्या होता है, आपके जो आप कहते हैं आई एम कॉम्बिंग माई हेयर, यू आर नॉट गोइंग टू से हेयर्स, यू आर गोइंग टू से हेयर। हेयर्स तब होता है जब आप उनको काउंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर फ्यू हेयर्स इन द ब्रश। कंघी करते हुए बाल कुछ रह जाते हैं ना ब्रश के अंदर, ठीक है। इफ अगर आपके कुछ, आप उनको काउंट कर सकते हो, 5 हैं, 6 हैं, कितने हैं, देन यू आर गोइंग टू यूज हेयर्स। जब आप अपने हेयर्स को काउंट कर सकते हो, ठीक है, फ्यू हेयर्स, देन यू कैन यूज दिस वर्ड हेयर्स। बट इफ आई से आई एम कॉम्बिंग माई हेयर, आई एम अरेंजिंग माई हेयर, आई एम सेटिंग माई हेयर, देन यू आर गोइंग टू यूज हेयर। जब आप काउंट कर सकते हो, 2 है, 3 है, हेयर्स है, कितने हैं, देन यू आर गोइंग टू यूज हेयर्स, ठीक है। Countable noun are those noun that you can count. Anything that you can count are countable nouns. ठीक है। For example, you can count the books, you can count your dresses, you can count your classes, ठीक है। So these are what? These are the countable nouns.
And then comes uncountable noun. Sheep is not a collective noun. Sheep is what? The name of the animal. Sheep is the name of the animal. But ये जो हम कहते हैं ना herd या cattle, ये हम collectively ले लेते हैं चीजों को, ठीक है? sheep तो क्या है? sheep तो एक एनिमल का नेम है. अच्छा, sheep का plural भी sheep. उसके लिए एक और वर्ड बचे यूज होता है. एक मिनट रुको इधर. उसके लिए हर्ड या कैटल यूज होता है. अच्छा, उसके अलावा आ जाते हैं अनकाउंटेबल नाउन के होते हैं. अनकाउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन्स दैट यू कैन नॉट काउंट. ठीक है? Now we have to understand the difference between countable and the uncountable. एक चीज तो बड़ी easily हमें समझ आ जाती है. Uncountable that you cannot count, countable that you can count. But if we talk about different things which are countable or which are not countable, for example, जैसे मैंने आप लोगों को hair की भी बात बताई है. If you are arranging your hairs, you are combing your hair, ठीक है? And you cannot count those. You are arranging your hair, you cannot count those. Then you can use the word. Then you can say that this is an uncountable noun. ठीक है? If you are saying there are few hairs in the brush, these are countable, ना? Then you can say this is a countable noun. अब आ जाते हैं इसके ऊपर. For example, water is what? Water. What do you think? Water is a countable noun or an uncountable noun? Uncountable noun. Uncountable. Uncountable noun. Countable noun. Uncountable. Mute yourselves. Those who say that water is a countable noun, raise your hands. Those who think that water is a countable noun. एक मिनट. Nimra, Razia, Akila, Ali Hassan, Rabia, Taimur, Muhammad Usman. These people think that water is what? Uncountable. And those who think that water is a countable noun. And those who think that water is a countable noun. Anyone? अच्छा, Water is uncountable. जो कहते हैं कि uncountable है वो अपने हाथ हैंड lower कर ले. And those who think that water is a countable noun, those students should raise their hands. Those who think that water is a countable noun. मैम अभी अनकाउंटेबल वालों ने करना है कि काउंटेबल वालों? Countable. Those who think that water is a countable noun. And those, okay. And those who think that it's uncountable. Those who think that water is uncountable. What about the rest of the students? Muqaddas, Abdul Wahid, Ali Hassan, Aqsa, Ariba, Ghulam, Sughra, Rabia, Razar, Sana Asghar, Sibqa Zahid. Ma'am, uncountable है. Okay. Let me uncountable है. Let me clear you. You both are right. But there is a sense. Lower your hands. There is a sense that you need to understand. Both are countable, but in different scenarios. How? For example, एक water है. For example, if I say, fetch me a glass of water.
fetch me a glass of water, मैं पानी मांग रही हूँ किसी से, fetch me a glass of water। अब वो जो glass of water है, अब हमें उस water की quantity पता चल गई है कि वो एक glass के अंदर आ गया, ठीक है। या हम के this is a can of water, या फिर से this is the box of juice, ठीक है। सो वो जब हम किसी जूस को, मिल्क को, किसी लिक्विड चीज को किसी काउंटेबल चीज के अंदर ऐड कर देते हैं, ग्लास के अंदर हमने ऐड कर दिया तो हमने कह दिया दिस इज अ ग्लास ऑफ वाटर, देयर इज अ लिटिल वाटर इन द कैन। इन दिस वे यू कैन टेल द क्वांटिटी ऑफ दैट लिक्विड मटेरियल, बट you cannot count the water if it's in the ocean, if it's in the sea, if it's in the river. You cannot count that water. You can use the word this is a river, this is an ocean, this is a sea, you can say, but you cannot count. Again, you can count the water, you can say this is a glass of water, or you can say the glass is half full, or you can say the glass is half empty, but similarly you cannot count each and every drop of water. आप उसमें से ये काउंट नहीं कर सकते कितने ऑक्सीजन है, कितने हाइड्रोजन है एक ग्लास के अंदर। हाँ, आप ये तो बता सकते हैं दिस इज अ ग्लास ऑफ वाटर, द ग्लास इज हाफ फुल, द ग्लास इज हाफ एम्प्टी, देयर इज लिटिल वाटर इन द कैन, देयर इज नो जूस इन द बॉक्स, एंड यू कैन से the milk is there is much milk in the fridge, but you cannot count each and every particle, or you can say you cannot count each and every drop of that liquid material. Then it would come under the category of uncountable noun. But if you will say that but आप उसको countable में जिस सेंस में लेकर आ सकते हैं, अगर आप उसको किसी चीज, किसी confined चीज के अंदर ऐड कर दें, then you can say that this is a countable noun. Now come towards another type of a noun, that is compound noun. Razia, do you want to say something? Razia? Yes, ma'am. What? Ma'am, compound mean mixture. No, asking नहीं, मैं कंपाउंड का पूछ नहीं रही, वैसे आपसे पूछा है कोई क्वेश्चन है एनीथिंग एल्स कंपाउंड, तो मैं शुरू करने लगी हूँ ना। नो मैम, क्वेश्चन नहीं है, मुझे लगा कि आपने कंपाउंड का पूछा है। ओके मैम, अगर वाटर इज काउंटेबल नाउन हो सकता है तो साल्ट, हनी और ये भी काउंटेबल नाउन हो सकते हैं। ये चीजें तब काउंटेबल हो सकती हैं जब आप उनको किसी टिन के अंदर या बॉक्स के अंदर ऐड कर देते हैं, तब आप कह सकते हैं दिस इज अ बॉक्स ऑफ हनी, या दिस इज अ टिन ऑफ हनी, दिस इज यू कैन से दिस इज अ बॉक्स ऑफ सॉल्ट, ठीक है। तब आप इस वे में आप इन चीजों को काउंटेबल कह सकते हैं, लेकिन यू कैन नॉट काउंट ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ दोस थिंग्स, देन ये अनकाउंटेबल है। जब आप जनरल ले रहे हैं ना, सॉल्ट इज अनकाउंटेबल, वाटर अनकाउंटेबल, if I say milk uncountable, honey uncountable, but countable किस तरह से लेकर आ सकते हैं, जब ये किसी चीज के अंदर ऐड हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल ये किसी बॉक्स के अंदर आ जाती हैं, और बॉक्स को तो आप बता सकते हैं ना वेदर इट्स लार्ज और स्मॉल, या वो जूस या हनी या वो जो भी लिक्विड मटेरियल है वो कितनी क्वांटिटी के अंदर उसके अंदर पड़ा है, ठीक है। But you cannot count each and every particle. If it's in the box, if it's in the glass, if it's in the if it's in the jug, you cannot count each and every particle of that liquid material or that salt or any other thing. Achha, now comes towards a compound noun. Compound is understandable from its name. Compound, when you combine the things, ठीक है। कलेक्टिव क्या था, कलेक्टिव में हमने कलेक्टिवली एक नेम दे देते हैं कलेक्टिव चीजों को, कलेक्टिव लोग हैं जो इकट्ठे हुए हैं, देन यू कैन से द ऑडियंस और द क्राउड, बट इन द सेम जब हम कलेक्टिवली हमने एक नेम दे दी है, ठीक है। कंपाउंड इज समथिंग व्हेन देयर इज अ combination of two or more words, when two or more words are combined together, whether there is any punctuation of hyphen within that, or whether there is a space or whether there is no space, and that
combination of two or more words make a meaningful single word, then you can say that it's a compound noun. Have you understand me? समझ आई? Yes, ma'am. मैम नहीं आई समझ। मैं दोबारा रिपीट बता कर देती हूँ। रिपीट कर मैं रिपीट कर देती हूँ। कंपाउंड नाउन होता है कॉम्बिनेशन। पहला ये वर्ड ज़हन में रखो, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या होता है? कंबाइन कर देना, इकट्ठा कर देना, ठीक है। दो या टू और मोर वर्ड्स, दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को आप जब कंबाइन कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं और एक नया वर्ड क्रिएट कर रहे हैं, मीनिंगफुल वर्ड क्रिएट कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे कंपाउंड नाउन। फॉर एग्जाम्पल टूथपेस्ट, tooth and paste. Tooth and paste, these are two different words. Paste is a different word, tooth is a different word. But when you will combine these two words, then it will be toothpaste. और एक different चीज को ये रेफर कर रहा होगा जो कि ट्यूब होती है, ठीक है। या फिर से पोस्ट ऑफिस। पोस्ट क्या है? पोस्ट is a different word that has its own meaning. Office is a different word that is also having its own meaning, but when you will combine these two words together, then it will be post office. It is referring to it is giving its own meaning, ठीक है। एक अपना meaning कन्वे कर रहा है पोस्ट ऑफिस जो है। But another thing, and any other example, for example, if there is a football, foot and ball, when you will combine together, then it will be football. अब ये compound noun होंगे, ठीक है। जब इस किस्म के words आपके सामने आएंगे, then these will be compound noun. For example, son-in-law, father-in-law, mother-in-law, ये भी अब different words हैं जो कि आपने combine किए और इनके अंदर वो hyphen है, punctuation है, space है, ठीक है। So ये एक meaningful word create कर रहे हैं। दो या दो से ज़्यादा meaning words हैं जो कि combine होके एक सेपरेट अपना मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, then it will be the compound noun. Classroom is a compound noun. Very good. Sunshine is a compound noun. Birthday is a compound noun. Sunflower. Cupboard, haircut. Bedroom, hairstyle. Notebook. Restroom. Very good. These all makeup. Make and up. रेस्ट एंड रूम, पोस्ट एंड मैन, ये सब चीजें कंबाइन होके एक सेपरेट मीनिंगफुल वर्ड क्रिएट कर रही हैं। सो दीज आर द, और इस किस्म के वर्ड्स जब आपके सामने विद इन द सेंटेंस आएंगे, देन दैट विल बी द कंपाउंड नाउन, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट टाइप पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज भी हमने इसकी करनी है। Then comes towards the another type, that is material noun. Material noun refers to any material that exists in the form of substance. कोई ऐसा मटीरियल जो कि एक चीज, कोई नई चीज क्रिएट करता है, उसको हम कहते हैं मटीरियल। फॉर एग्जाम्पल राइस, चावल जो होता है, राइस इज अ मटीरियल जो कि एक नई फॉर्म बन जाता है, ठीक है। राइस को हम यूज करते हैं जो कि एक नई फॉर्म बन जाए। फॉर एग्जाम्पल थ्रेड, धागा जो होता है, ठीक है, जिससे एक मटीरियल है। By using that material you can create any other new thing, ठीक है। So that will be the अभी भी वेट करो, 10 मिनट वेट करो। So that will be the material noun. अब wool है, leather है, these are the materials, ठीक है, जिससे एक नई thing create हो रही है। So that will be the material noun. Wheat is a material, ठीक है। Sugar is a material, salt is a material. Very good, ठीक है। So these are the materials. Milk, water. Thread, wool, leather. For example, this bag is made up of leather. Leather is a noun. Leather is a material noun, ठीक है। I am making rice. Rice is a material. I am making biryani. तो बिरयानी में no, उसमें बिरयानी में राइस तो नहीं आया ना, but that is also a material. The biryani is a name of a food. That is also a noun, ठीक है, ठीक है। So these are the, हमने material noun में तो substance बताना है, ठीक है, जिससे कोई चीज क्रिएट हो रही होती है,
Cement is a noun. Cement is a material noun. Very good. Clay is a material noun. Ink, plastic, steel glass, diamond, gold, silver. Very good. Stone, iron. These all are the material nouns. ठीक है? The last type of a noun is possessive nouns. Possessive nouns. एक minute. Yeah, wood is also a material. Water is also a material. हाँ जी, अंडा भी मटेरियल है जिससे अंडे बनाते हैं हम. पेपर में ना अंडे ले लेना. Possessive noun is a noun that shows the ownership. Possessive noun, possessive itself is understandable from its name. Possessive होना एक चीज की ownership होना, ठीक है? आप on illustrates possessive noun illustrates the ownership. For example, Aisha's book. Aisha's हमने apostrophe लगा के जब s लगाते हैं and then I say Aisha's book, ठीक है? Aisha is what? Aisha is a proper noun. Aisha is a name of a girl, ठीक है? Aisha and book is also a noun that is a common noun, ठीक है? हम कोई specific किसी book का name नहीं ले रहे but कोई book है, ठीक है? Aisha's book. जब हमने Aisha's book लगा दिया, Aisha's बने Aisha apostrophe and s. Aisha's book, then this is showing the ownership, ठीक है? तो जिस तरह जब इस तरह से हम यूज करते हैं, for example, Aman's dress, Aman का dress है, s लगा के apostrophe, ठीक है? Then this will be the possessive noun. Have you understood me? Are you getting? Yes, ma'am. अच्छा, तो ये possessiveness शो करता है. अब कुछ बच्चों को confusion हो जाती है, जैसे this is my book, this dress is mine. अब ये mine, my, her, his, ये होते हैं pronoun. These are not the noun, ठीक है? ये possessive nouns को refer नहीं करते. ये for example, she is. For example, if I say there is a sentence that she is her sister. She is her sister. ये भी तो एक ownership ही शो करता है, एक relationship शो कर रहा है कि वो उसकी sister है. लेकिन हर क्या है? हर pronoun है, हर noun नहीं है, ठीक है? हर is another, हर एक pronoun है जिसकी आगे से एक type है जो उसको refer कर रहा है. Possessiveness शो होती है, for example, जब आप किसी name के साथ वो apostrophe लगा के s लगा रहे हैं, ठीक है? So ये चीजें आ जाती हैं possessive noun के अंदर. अब एक और बात भी है, within the sentence if there is a word, if there is any word, for example wood, लकड़ी जो होती है, एक मिनट ओमान, wood is a noun, ठीक है? अब आपको पता चल गया wood जो है sentence के अंदर वो noun है. अब wood जो है वो concrete noun भी हो सकता है, wood जो है वो countable noun भी हो सकता है, wood material noun भी हो सकता है, ठीक है? एक noun जो है वो different types को refer कर सकता है, but you have to differentiate by understanding the sense of a sentence. Sentence की आप sense को understand करेंगे तब आप बता सकते हैं ये किसको refer कर सकता है. For example, this chair is made up of wood. Then this wood is a noun. Then this wood is a material noun. ये collective, ये concrete भी हो सकता है, ठीक है? और ये countable भी हो सकता है, ठीक है? Morning, abstract और concrete. Morning जो है, does it exist in the physical form? You can see morning. Morning is a time. Abdul Rahman, morning is a time of the day. That is a time, ठीक है? एक मॉर्निंग का टाइम है जो कि सुबह हो रही है, सनशाइन आ रही है, birds are chirping. That is the time period, ठीक है? You can see the rising of the sun. You can see you can hear the chirping of the birds. You can see those birds, and you can hear the you can see that movement, ठीक है? बट मॉर्निंग कोई एक किसी फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता. मॉर्निंग एक टाइम है जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है? You can see buildings, you can see
वो एक टाइम है जिसको वो रेफर कर रहा है, ठीक है। तो नाउन जो भी मैं बात बता रही थी, नाउन जो है वो एक नाउन जो है वो डिफरेंट किस्म की टाइप्स को रेफर कर सकता है। होप यू पीपल हैव गेट व्हाट आई हैव डिलीवर्ड टू यू विद इन दिस क्लास। मैम 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 पोजेसिव नाउन में माय, माइन, यू, योर्स ये नहीं आएगा फिर? योर ये प्रोनाउन है बच्चे। माय, माइन, दीज आर नॉट द नाउन्स। जी ठीक है। मैम आयशा's बुक, अगर आयशा's बुक हो तो ये पूरा वर्ड पोजेसिव। आयशा's बुक आ गया तो ये दैट इज शोइंग द पोजेशन, ठीक है। ये पोजेशन को शो कर रहा है। आयशा एक सेपरेट नाउन है जो कि प्रॉपर नाउन है। बुक इज अनदर सेपरेट नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन है। लेकिन आयशा's बुक को अब आपने अंडरस्टैंड करना तो ये पोजेसिवनेस को शो कर रहा है। नोमान, मैंने ये पूछना था कि ये जो पोजेसिव नाउन में एपोस्ट्रोफी लगाना लाजमी है? एपोस्ट्रोफी लगाना एपोस्ट्रोफी लाजमी। अगर आप कह रहे हो आयशा बुक, आयशा बुक क्या होता है? आप आयशा को बुक कह रहे हो, ऐसे तो नहीं होता ना। सेंस तो नहीं कन्वे हुई ना, कंप्लीट सेंस तो नहीं बनी ना। आपने सेंटेंस के अंदर एक सेंस कन्वे करनी होती है, ठीक है। इफ आई से माय नेम मरियम, पता तो चल गया, मतलब तो समझ आ गई माय नेम मरियम, बट एक सेंटेंस जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। माय नेम इज मरियम, यू हैव टू यूज दैट प्रेपोजिशन विद इन द सेंटेंस। जो मैंने आप लोगों को ग्रामर फैमिली सुनाई है ना, ग्रामर फैमिली के अंदर जो आप लोगों के थे ये प्रेपोजिशन था जो कि कंबाइन करता था, जो कि रोल प्ले करता है। मैम जो आपने ये दूसरी एग्जांपल दी थी, शी इज हर सिस्टर, पोजेशन, इसमें भी प्लीज इसका दोबारा बता दें। पोजेशन शो हो रही है लेकिन हर क्या है? हर प्रोनाउन है। पोजेशन की सेंस बन रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ आई से दिस चेयर इज मेड अप ऑफ, फॉर एग्जांपल दिस चेयर हैज अ लेग, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ दिस चेयर हैज अ लेग, हमें ये पोजेशन तो शो हो रही है इस चेयर की, ये लेग है, ठीक है। लेकिन अब आप ये तो यूज नहीं कर, आप सेंटेंस के अंदर ये नहीं कह सकते चेयर्स लेग, ठीक है। दिस इज द लेग ऑफ द चेयर, चेयर्स चाहिए, ठीक है। तो पोजेसिवनेस आप ऑनरशिप शो करते हो किसी चीज की, किसी भी ह्यूमन की। फॉर एग्जांपल आपका अपना कोई ड्रेस है, आप कह दोगे फॉर एग्जांपल इज़ा इज सेइंग अबाउट हर ड्रेस, इज़ा's ड्रेस, एमन्स ड्रेस, अमीर's ड्रेस, ठीक है। तो आप उसमें पोजेशन शो कर रहे होते हो। और एक नाउन जो है वो डिफरेंट रोल प्ले कर रहा होता है विद इन द सेंटेंस। वो कंक्रीट भी हो सकता है, वो काउंटेबल भी हो सकता है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द सेंस। अच्छा, नाउ इट्स 3:34. आई एम गोइंग टू एंड द क्लास and I will send you the book. I will send you the notes of these types of the noun which we have studied today, as well as I'm also going to send you an activity that you will do before coming into the next class of English on Friday. And उसके अलावा you have to, while coming towards the next class, अगली क्लास में जब आप आएंगे तो अपने दिमाग के अंदर ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये जो भी आज मैंने आप लोगों को पढ़ाया, ये दिमाग के अंदर रख के आना। अगर दिमाग के अंदर नहीं रख के आना तो फिर दिमाग भी ना लेकर आना और फिर खुद भी ना आना, बेशक क्लास के अंदर ना आना। मुझे आप लोगों की प्रेजेंस कोई मैटर नहीं करती। अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं करना, अगर आपने ध्यान से सुनना नहीं है क्लास के अंदर, आप नेक्स्ट टाइम आए और आपको नहीं आता होगा कि मैंने क्या बताया, तो कोई ज़रूरत नहीं है अपना नेम इधर शो करने की। जो पढ़ के आए बेशक वही आए, ठीक है। और अपना दिमाग भी साथ लेकर आना क्लास के अंदर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मैम आपने अटेंडेंस ले ली? हाँ जी, एक मिनट रुको। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज। वेट फॉर अल्लाह हाफिज मैम। पैराग्राफ भी हो जाता है जो क्लास का बना हुआ है सेपरेटली, उसके अंदर अपने पैराग्राफ्स की पिक्चर्स जो है वो करता है सब बच्चे, ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।